अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबश्शिर हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका चुरस्ता मियां खां मोहल्ला अहमदपुरा में। मेरे साथ मुतासरा ख़ानदान मौजूद है जिनके साथ एक मक्का हॉस्पिटल वालों ने ज़्यादती की है। वो कैसे ज़्यादती हुई उनकी ज़बानी जानते हैं। ये चुरस्ता मियां खां जो है थाना चुरस्ता मियां खां की हदूद में आता है, तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका है। मेरे साथ वो फ़र्द मौजूद है जिसने अपनी बीवी का ऑपरेट करवाया मक्का हॉस्पिटल से, और उनके साथ क्या वाकया पेश आया। वो बीबियां भी मौजूद थी जो इसकी बीवी के साथ हॉस्पिटल में भी मौजूद थी, और वाकया जो इनकी जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, की वाकया है जी? मैं ਮੱਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। तनवीर कौन है? ਬਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਮੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ 15-16 ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਗਮ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਝੰਡ ਬਾਹਰ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਮਾਰ ਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਪੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਰਸ ਨਸੀਮ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 15-16 ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਮਲ ਫਟ ਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਾਰ ਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਸਫ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਫਨੂ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡਾ ਬੇਤੁਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਲੈ ਵੜਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ। अच्छा, ऊपर से बदतमीजी की। ਹਾਂਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ वज़ीर आला मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈगाम ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਫਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ 15-16 ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਸੇ। ਮੁੜ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋਇਆਵਲ ਫਟ ਜਾਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਜਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰਸਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਗੱਲਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੇਟ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਸ ਆਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਈ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੱਟ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਾਕ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਉਂਦੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਆਧਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ,
इनका पेट जिहड़ा है ना वो बंद करो और सही करो, गलत ना करया। इन्हें सही दी बजाय ये कीता है जे बड़े बड़े जिवें रजाइयां सीवी दियां तरोपे चलाए ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ना। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। गल उनदी होई है, असीं उनदे पैसे 20,000 इन्हां नूं दित्ता है। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪੱਟੀ बदलने लगे तो इस तरीके होया, बेड़े टांके लग गए तो रात में सोंदी हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना मुतासरा खानदान की ज़बानी कि इनके साथ कैसे जुल्म हुआ। इनके साथ कंप्यूटर का ऑपरेशन की बात की, वो अपना नॉर्मल दूसरी तरह किया, कंप्यूटर नहीं किया। मैं इनकी वज़ीर आला पंजाब से, आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और महकमा हेल्थ से गुजारिश है फिल फौर इस बात का नोटिस लिया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ, किसी और के साथ ऐसा ना हो। एक और बात आपको बताता चलूं, ऑपरेशन के 2 दिन पहले हॉस्पिटल मक्का हॉस्पिटल में तशरीफ लेके गए। उनका कहना है कि उनका हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये तकरीबन अभी 15 दिन जो है और लग जाएंगे। तो 2 दिन बाद बीबी को दर्द शुरू हुई तो उन्होंने ऑपरेशन के लालच में जल्दी जो ऑपरेशन करने थे, 2 ऑपरेशन और भी थे इनके पास, यानी कि 2-4 ऑपरेशन हो तो सर्जन डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन पूरे करने के लिए देखो बच्चे की जान ले ली। तो मैं फिर वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ फिल फौर इस बात का नोटिस लिया जाए, इन गरीबों के साथ जो जुल्म हुआ है इनको इंसाफ दिलवाया जाए। जी बिल्कुल, इसी मक्का हॉस्पिटल का डसा हुआ एक इंसान और मेरे साथ मौजूद है जिसकी बीवी की यहाँ पर डेथ हुई थी। उनसे जानते हैं वो कैसे डेथ हुई, क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ में अपनी बेगम का ऑपरेट करवाया तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ बेगम मेरी ने ना ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। एक कसाई ने भैन अंदर जरा ना मरीजन कोई जा रहे मैं तो सिर्फ अपनी जरा ना इंसानियत चुप कर गया। मैनू कोई दोस्तों ने कहा भी सी कि इन्हां दे खिलाफ FIR कटवाई जावे, मैं लेकिन क्या नहीं यार ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ सर जी कजन है मेरा ये जेड़ा दुकान ते आया ते अंदर हॉस्पिटल चो निकल रहा सी, तेन मैं कहा भी है कि अली अब देखो आपां ऑपरेशन नहीं करवाना, ये अपनी बेगम नूं लैके चला गया। फिर जेड़ा घर आया तो अगू बीबियां ने इन्हां ने गाइड किया है, गाइड करके ते फिर उन्हें मुतमिन करके ते बड़ा परेशान करके जी बच्चे जी आवल फट जाएगी, ये है वो है। ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਦੇ तो डेथ हुई? मेरी बेगम जी साथ डेथ हुई है, बच्चा पैदा होया सी, बेगम मेरी फौत हो गई सी। बच्चे नूं मैं जेड़ा ना जी मैनू पता किवें सांभिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का हॉस्पिटल जो चुरस्ता मियाँ खां में है, जहाँ पे अपना बच्चे की माँ का ऑपरेट हुआ है। यहाँ से बच्चा दीपालपुर शिफ्ट कर दिया गया है, दीपालपुर बच्चे की डेथ हुई है। तो मेरे साथ मक्का हॉस्पिटल के ओनर मौजूद हैं जो इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल को चला रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये कैसे मामला हुआ, आपने ऑपरेशन क्यों किया इतने दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुफैल शबाज। अच्छा, आप यहाँ डॉक्टर हैं? नहीं, मैं एज ए डिस्पेंसर हूँ। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है बच्चे का? बच्चा ना हमारे पास लेडी डॉक्टर है, LHV राशिदा लतीफ़ उसका नाम है। तो ये जो पेशेंट है ना, ये पिछले 3-4 मंथ से ना हमें रेगुलर चेकअप करवा रहा था। ठीक है, तो मैडम ने इनको टाइम दिया हुआ था 15वें रोज़े का। ठीक है, 15वें रोज़े का टाइम दिया हुआ था। ये पेशेंट हमारे पास आया है 7वें या 8वें रोज़े। ठीक है, तो मैडम ने इनका चेकअप किया है तो ये आया फुल लेबर पेन के साथ। मैडम ने कहा है कि आपका ऑपरेट होगा, लेकर लीक हो गया है, आप अब बेहतर यही है, इसमें बच्चे का भी फ़ायदा है और माँ का भी फ़ायदा है, आप ऑपरेट करवा लें। ठीक है, ये पेशेंट एक दफ़ा घर चला गया, इन्होंने कहा है कि हम अपनी सलाह वगैरह करके फिर आते हैं। फिर इनकी ये कोई जानने वाली है, इनकी ताई है या चाची है, ये जो है ना हमारे हॉस्पिटल के साथ ही रहते हैं, करीबी हैं, वो इनको दोबारा लेके आई है। फिर हमने ना सारी बात मरीज़ के लवाहिकीन को बताई है कि आपके पेशेंट को ये मसला है, बच्चे के दिन कम है, हम आपकी इजाज़त से आपके साइन अंगूठा करवा के आपका ऑपरेट करने लगे हैं। इन्होंने कहा है कि ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है हमारी मर्ज़ी से, हमारी रज़ामंदी से आप वो कर दें। ठीक है, फिर पेशेंट को हमने एडमिट कर लिया है, हमने सर्जन को कॉल किया है, सर्जन आया है, उसका ऑपरेट करके चला गया। सर्जन कौन है इधर? सर्जन डॉक्टर इकबाल साहब, THQ दीपालपुर के वो सर्जन। फाइल है जिस जो ऑपरेशन की जिसको जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो थंब सिस्टम, वो सारा जो है ना प्रॉपर फाइल वो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें सर्जन के नोट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। जी। तो जब इसका ऑपरेट एनेस्थीसिया डॉक्टर कौन आता है?
एनेस्थीसिया वाला नहीं आया हमारे पास, वो ना कि हमने बेहोशी में किया है, वो इकबाल साहब के साथ एक आता है दूसरा, वो उधर से THQ वो खुद साथ लेके आए हैं, उन्होंने किया है मतलब एनेस्थीसिया वगैरह में। तो जब ऑपरेट हुआ है ना, तो बच्चे को, जब बच्चा बाहर आया ना मतलब ऑपरेट के बाद, तो इकबाल साहब ने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि ना इसको एक दफ़ा ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवा लें, ठीक है। वो फिर हमने इधर से अपनी हमारी गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में हमने बच्चे को डाला है, तो हम उसको साथ लेके गए उधर THQ में ना, हमने एडमिट करवाया। जब उधर एडमिट करवाया तो उधर मतलब जो डॉक्टर बैठा था उसने उसको प्राइवेट रेफ़र किया है या जो भी मामलात बना है, वो उनका बच्चा ना 3 दिन उधर डॉक्टर हाफ़िज़ यूसुफ साहब के पास ना एडमिट रहा। वो 3 दिन के बाद बच्चे की उधर डेथ हो गई है, तो अब उन्होंने वो जो सारा इल्ज़ाम है वो हमारे पे लगा दिया है कि जो भी गलती है वो तुम्हारी है। वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेशन की बात की थी तो वो सादा किया है। वो जो ऑपरेशन की बात है ना कंप्यूटर की, अगर ऑपरेशन कंप्यूटर ना हो तो जो सज़ा वो देनी चाहें, जो सज़ा मतलब लीगल तरीके से बनती है, उन्होंने किसी डॉक्टर को चेक करवाया, वो टांके लगे हुए हैं इसके बारे में। वो कंप्यूटर ऑपरेशन है। वो जिस डॉक्टर को भी उन्होंने चेक करवाया ना, वो आपको पता है कि वो जो डॉक्टर होते हैं ना, जो जिनको नहीं पता होता ऑपरेशन का, वो यही कहते हैं कि टांके लगे। किसी प्रॉपर सर्जन को या किसी प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे को वो चेक करवा लें। वो अगर कह दे कि कंप्यूटर ऑपरेशन